नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में जेआरएफ की पोजीशन आई है। लास्ट डेट है December 3rd। तीन चीजें जो हर जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको देखनी चाहिए। पहली, लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की है December 3rd। दूसरी, सब्जेक्ट आपका, तो इसमें एनवायरमेंटल साइंसेज है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और तीसरी कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं। तो लेट मी look at the application of the JRF positions at ISET Bhopal. This is the advertisement. Advertisement for the post of Junior Research Fellow, JRF. Applications are invited for the post of a Junior Research Fellow in a research project funded by MHRD Government of India. Project title है Analysis and Modeling of Precipitation Systems and Synoptic Conditions in the Indian Monsoon Core Zone. तो meteorology से related project है. Essential qualification, you must have these in order to apply. Postgraduate degree in basic science or graduate or postgraduate degree in professional courses selected through a process described through any one of the following. A, scholars who are selected through national eligibility test. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस है, तो इन्वायरमेंटल साइंस भी इसमें आता है। और तो फिर आप इन्वायरमेंटल साइंस से हो सकते हैं या किसी भी साइंस सब्जेक्ट से हो सकते हैं। और चाहिए या यूजीसी नेट आपने किया हुआ हो या गेट आपने किया हुआ हो, आपके पास वो स्कोर होना चाहिए। Selection process through national level examination conducted by MHRD and its agencies and institutions such as UGC, IIT, IISc, IISER, IIT। तो इनमें से किसी भी लेवल के इंस्टीट्यूट का कोई एग्जाम जो आपने एक जेनेरिक एप्टीट्यूड टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, यूजीसी नेट है, गेट है, और भी एग्जाम जो होते हैं, कुछ भी आपने क्वालिफाई किया हो, अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट और CGPA और CPI और CPI of 7 and above on a 10-point scale। तो कम से कम 60% मार्क्स से आप पास हुए हो एमएससी में या ग्रेजुएशन में यहाँ पे, या फिर आपका CGPA अगर है तो वो 7 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, या 7 पॉइंट भी चलेगा, 7 पॉइंट या 7 पॉइंट से ऊपर। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर हो तो अच्छा है, और अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में से जो भी है वो अपने CV में हाईलाइट कीजिए। So desirable qualification, if you have them, it's best. And if you have any of these desirable qualification, please highlight it on your CV or resume. Desirable, understanding the basic of meteorology. Everybody knows that. Indian monsoon के बारे में आपको पता होना चाहिए. You already know that. You studied it in your 10th standard. Experience in working with NCL or Python programming large data sets. तो statistics वगैरह की idea होनी चाहिए. Good coding and analytical skills. If you have them, it's good. Working experience with climate or regional atmospheric models. If you have experience, perfect. But it is all desirable. Students with a background in atmospheric and oceanic sciences, computer science, civil engineering, earth and environmental sciences are encouraged to apply. So if you belong to any of these categories, it is highly desirable. Job description. The JRF will be involved in full time in downloading and managing data sets, analysis of precipitation, variability, testing and setting up of WRF मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, मतलब रिसर्च पेपर। ड्यूरेशन 1 year है और फिर 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा, 1 year, एंड इट कुड बी एक्सटेंडेड। सैलरी 31,000 प्लस हाउस रेंट अलाउंस। एक्सीलेंट सैलरी फॉर अ JRF। इससे अच्छी सैलरी JRF को मैंने कभी नहीं सुनी। 31,000 प्लस हाउस रेंट अलाउंस, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कैंडिडेट्स विद A और B इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो A और B क्या है। A यही स्कॉलर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या B सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल। तो आपके पास अगर ये दोनों में से कोई एक है तो आपकी सैलरी होगी 31,000 प्लस HRA, और 25,000 प्लस HRA कैंडिडेट्स विदाउट A और B इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो अगर आपके पास ये नेट या गेट वगैरह कुछ नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। बस आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी, 25,000 प्लस हाउस रेंट अलाउंस। और 25,000 प्लस हाउस रेंट अलाउंस भी JRF के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। हमारे टाइम में तो हमें कुछ 14-15 हजार मिलते थे नोट, और HRA भी नहीं मिलता था। Note, salaries are subject to institute norms and qualifications. Age should not exceed 35 years as on 1/12/2022. 1 दिसंबर तक आप 35 साल से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। Completed application should be sent by email to Dr. Shubhi Agrawal, s.agrawal@iisrb.ac.in with the subject line application for the post of JRF। तो ईमेल से भेजना है सब कुछ, और सब्जेक्ट लाइन में application for the post of JRF लिखना है। The application should contain a cover letter with research interest and qualifications, a detailed CV, तो short resume एक पन्ने का नहीं, detailed CV जिसमें सारे रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस जो इस
पोस्ट से जुड़ा हुआ आपके पास कुछ है, वो सारा अच्छे से लिखा होना चाहिए। एंड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, 10th सर्टिफिकेट, नेम ऑफ 2 रेफरीज, यूजुअली आपके प्रोफेसर या आपका कोई एक्स बॉस हो सकता है जो आपके लिए, जो जहाँ की फोन करके ये लोग पूछ सके आपके बारे में, तो 2 रेफरीज का नाम देना है। एंड रिप्रिंट्स ऑफ पेपर्स इफ एनी, और अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश है आपका या कुछ भी आर्टिकल, तो उसका भी प्रिंट आउट लेके स्कैन करके उसको भी ईमेल के साथ लगाइएगा। तरीका ये होता है कि सब कुछ एक लंबे से पीडीएफ में या तो भेज दीजिए, या फिर ऐसा किया जाता है कि कवर लेटर एक सिंगल पीडीएफ में अलग होता है, और जो रेज्यूमे या सीवी डिटेल है आपका, वो एक सिंगल पीडीएफ में अलग होगा, और जितने डॉक्यूमेंट्स है 10th के, 12th के, एमएससी बीएससी के, वो सारा स्कैन करके एक साथ एक सिंगल पीडीएफ में अलग होगा। तो 3 पीडीएफ होंगे। 1 पीडीएफ विल बी योर cover letter, the other PDF will be your detailed CV, and the third PDF will be a mega PDF having all the documents of 10th, 12th, research papers, everything all put together. Okay, 3 different PDFs. That's the best way to apply. And in the subject line, you have to write application for the post of GRF. Application start date 23rd November 2022, and applications received till 3rd December will receive full consideration. Positions will be opened until fill. 3 दिसंबर तक अप्लाई कर दीजिए, फुल कंसिडरेशन मिलेगा। अगर 3 दिसंबर तक मिस हो जाता है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, शायद फिर भी कंसिडर कर लें वो आपको। इंटरव्यू, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड। एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट विल बी जनवरी 2023, और 2023 के जनवरी से होपफुली काम आपका शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इंटरव्यू के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं कि भले ही ऑनलाइन इंटरव्यू है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यू में तैयार होके बैठते हैं वैसे ही तैयार होकर बैठना चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड में कोई डिस्ट्रक्शन या कुछ अजीब सा नहीं हो, और इंटरव्यू शुरू होने के 5 मिनट पहले अपना कैमरा ऑन करके अच्छे बच्चों की तरफ बैठ जाइए। ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं। So there are basic etiquettes for an online interview, which includes dressing properly as you would in any in-person interview, and there should not be any distraction on your background. And third, open your screen 5 minutes before the interview starts, and make sure you are dressed properly and not doing any improper activity, because it's almost like an in-person interview just through a camera. All the best. Please do apply. It's a very handsome salary. I wish you all the best. And if you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe. I bring regular job updates, pre-lectures on environmental sciences, UGC NET preparation tips, and practice sets. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.